Subject is managerial economics, and yesterday, as you know, we have discussed about the elasticity of demand and the degree of elasticity of demand from its different types. Now today we will discuss about the importance of elasticity of demand कि जो मांग के लोच का नियम होता है उसके क्या अपने इम्पोर्टेंस होते हैं, उसके क्या अपने सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानते हैं तो उससे कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलते हैं और क्या इम्पोर्टेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने से, जो कि हमने पढ़ा था इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव, जीरो, मैनी डिग्री ऑफ income, price and cross elasticity of demand we have discussed in the previous video. So today we will discuss about its importance कि भाई जो price elasticity, income elasticity, cross elasticity of demand हमने पढ़ी है तो वो कहाँ पर beneficial होती है या उसके क्या results, क्या importance होते हैं। In this video we will discuss about this. तो first importance, it's useful for the business. How it is useful for the business? If you know as an economist, as a manager, if you know about the elastic and the inelastic demand, elasticity of demand, that means it is too much beneficial for your business because you know how to fix the price, how the consumer will get satisfied with your product, how you can increase the price, still the elasticity of demand will, the quantity demanded will same. So in this case it is the first foremost important of the importance of the elasticity of demand, that it is very much useful for the business. Next thing is the fixation of price. If you know the elasticity of demand, that means easily you can fix the price, because in the zero cross elasticity of demand we have discussed about the if the two complementary goods are not associate with each other, so there is no impact on the price increasing and the quantity. तो इनके बीच में कोई वहाँ पर इनवर्स रिलेशन नहीं होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो इस तरीके से जब हम यूनिटरी इलास्टिक, इनइलास्टिक डिमांड को जब हम समझने लगते हैं तब हमको एज ए बिजनेसमैन प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और बहुत ईजी टास्क हो जाता है प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना, बिकॉज वी वेरी मच नो अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Third is helpful in finance minister. How the finance minister is getting help from the elasticity of demand, because they know who finance minister, because they know the economic condition of the market, so easily they can take the advantage from the surrounding of their environment, that which price this customer will get the product, and such products can fulfill their needs. They are satisfactory, they are providing satisfaction to the customer, so it is also beneficial for the finance minister, who can able for fixation of the price, who if he want increase the product price, if he giving too much weightage in the budget for a particular products or services, so they can give. तो इस तरीके से अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने पर क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो हमने पढ़ा था है ना, कि लग्जरियस जो गुड्स होते हैं, जो जेम्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, उस कंडीशन में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाए तो क्वांटिटी डिमांड में फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो पता होगा आपको। तो इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट. नेक्स्ट, इन द स्फीयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इफ द कंट्री, एनी डोमेस्टिक कंट्री इज इन्वॉल्व इन द फॉरेन ट्रेड, अगर फॉरेन ट्रेड के साथ कोई भी कंट्री इन्वॉल्व होती है तो दे आर गेटिंग टू मच एडवांटेज इन द स्फीयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज डोमेस्टिक कंट्री में पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट सर्विस मैन्युफैक्चर की जा रही है वाया मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, तो दे कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. It may be from the investment side and many more points, factors affecting in the domestic market. That the paradox of poverty, it is sometimes act as a paradox of poverty, क्योंकि
जितने भी पावर्टी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है, हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में पढ़ा है कि गिवन गुड्स के उसमें हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए फिर भी उसके कंजम्पशन में कमी नहीं आती है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो समटाइम इज क्रिएटिंग पैराडॉक्स टुवर्ड्स द पावर्टी, गरीबी के लिए विरोधाभास कह सकते हैं इसको हम हिंदी में। तो इट इज एन अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंट फॉर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। whenever the government fixes or creating the policies, है ना, in the sense of price fixation or the income, the budget, many things, है ना, which such types of economic policies are creating by government, so it is also playing a significantly role in terms of government economic पॉलिसी कि जब भी भाई इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर की जाएगी, जब भी इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक डिमांड को ध्यान में रखा जाएगा, तो इट इज ऑल्सो प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि देखा जाता है कि भाई अगर इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, इनकम बढ़ती जा रही है, तो उसके नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो उस कंटेक्स्ट में जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती जा रही है, तो जो हमारा स्लोप बना था वो अपवर्ड बना था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसके क्या रीजन थे, तो दैट्स व्हाई हियर आई एम सेइंग दैट इट इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, जब पूरे इकोनॉमी को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, क्या प्राइस फिक्सेशन है, क्या प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी है, कब प्रोडक्ट पे किस पे टैक्स बढ़ाना है, किसका टैक्स कम करना है, मेनी थिंग्स, मेनी पॉलिसीज आर दे आर क्रिएटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गुड्स, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। तो इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडीज के बाद काफ़ी हेल्प मिलती है। लास्ट थिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। इफ द गवर्नमेंट वेरी वेल नो अबाउट द products utility and at any price customers are willing to consume it, है ना, किसी भी प्राइस पर कंज्यूमर उसको विल रखता है, मतलब एक इच्छा शक्ति होती है कि भाई किसी भी प्राइस पर मैं तो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगा ही करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। जैसे पहले के टाइम में आईफोन परचेज करना एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता था, लेकिन देयर इज फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो इजीली लोग जो स्टूडेंट्स भी हैं तो दे कैन इजीली अफोर्ड द आईफोन। क्यों? क्योंकि फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पर इसलिए मैंने एग्जांपल दिया बिकॉज एट एनी प्राइस द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, है ना। किसी भी प्राइस पर जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा शक्ति रखता है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किस तरीके से प्रभावित होती है, ये यहाँ समझने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि पब्लिक यूटिलिटीज अगर पता होती है तो इजीली प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आती, इजी होता है प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करना। So these all are the importance of elasticity of demand which we have discussed. Or with this importance of elasticity of demand, this topic, what elasticity of demand is completed now. Thank you.